morning, sir. I would just introduce ourselves. We are being supported by ED Times. ED Times is a generalist online youth media platform that sees quirky bloggers write about things we need to know, spiced up with sarcasm. We have IICSR as our partner, who would be speaking on sustainability and CSR related matters, and Asia Foundation. And this initiative is by Digital Parliament. Youth Questions is a first platform wherein the youth can connect with the elected leaders and understand what are the challenges that they face in their lives, and how we can also support in terms of development of the country. So thank you, Mr. Pandey. Thank you for your time and joining us. May I request if there is a little more light in front of you, so it will be right. Is it any better? Yes, sir. Yes, sir. Absolutely. Okay. Thank you so much. Okay. So we would like to understand what has been your walk of life. We learned that you left job in Hong Kong and then you came over here. So what was your walk in life and the turning point in politics? Right. So basically मैं तो एक गांव से बिलोंग करता हूँ. छोटा सा कस्बा है उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर एक जिला है. Very small place called Zamania in that district. I did my graduation from that small town, and I had deep interest in computers, so I decided to go for masters in computer application. I did it from Bhopal. तो यहाँ तक तो लाइफ नॉर्मल थी. मतलब एक गरीब 5 बीघे खेत वाले किसान परिवार के बच्चे के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है अमूमन हमारे छोटे कस्बों में, वो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर भी थी. 2 बहनें हैं, मम्मी टीचर है छोटे से स्कूल में. तो कमाना है ये ज़रूरी है, सफल होना है ये ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें बात की हैं. मैं भी उसी रास्ते पे चल रहा था और मास्टर्स किया मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में सक्सेसफुली. और उसके बाद जो एक कॉर्पोरेट पर्सन की लाइफस्टाइल होती है वैसी ही रही. आई हैव बीन इन अराउंड 10-12 कंट्रीज थ्रू आउट दोज ईयर्स. 2004 के बाद से जॉब स्टार्ट किया MCA करने के बाद, और 2011 दिसंबर तक जॉब किया. 2012 के बिगनिंग तक जॉब किया. लास्ट टाइम हिंदुस्तान आने से पहले मैं हांगकांग में रहता था और वहाँ एक कंपनी में था, और एशिया पैसिफिक में उनके जो बिजनेस प्रोसेसेस थे IT के, वो देखता था मैं. उसमें थोड़ा बहुत इंटरवेंशन था हमारा. तो ये करीब 8-8.5 साल की कॉर्पोरेट लाइफ में सुख बहुत था, लग्जरीज बहुत थी, लेकिन सुकून नहीं था. मतलब सुकून का मतलब मैं ऐसे नापता हूँ कि रात में जब आप सोते हैं तो क्या बन के सोते हैं? आदमी बन के सोते हैं, मशीन बन के सोते हैं, सेटिस्फाइड है अपने लाइफ से कि नहीं? और वो संतोष, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था. आई हैड दैट सॉर्ट ऑफ ग्रज कि यार अपने लिए जी रहे हैं. दुनिया में 6 अरब लोग हैं. There are 6 billion people out there. Almost all of them are living for themselves, which is not, I used to feel that I'm made for. And suddenly 2011 में अगस्त में अन्ना हजारे जी का आंदोलन शुरू हुआ. उस आंदोलन ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया. I felt like there is someone who is absolutely not known to me. He was fasting in India. Why? Because he wants a better India. तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए. I'm living in Hong Kong and sharing the nationality is not sufficient. I mean, I must do something that I can do for my brothers and sisters living back in India. If I'm not able to, I should not say that I'm an Indian. तो उस भाव से मैंने कुछ करना शुरू किया वहाँ पे, और करता रहा. आंदोलन के साथ क्या क्या हुआ वो सब आप लोगों से छुपा नहीं है. एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ हांगकांग में रह के मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा जितना मैं कर सकता हूँ. I wrote an email to Arvind ji that time, sir, I want to do more for my country, and for that I'm ready to quit everything and jump into what you are doing. He said, dekh lo, it's your responsibility, you've got family, you've got everything to take care of back in your hometown, your mom, so final call should be yours. I said, fine. मैं कैलकुलेट करता रहूँगा तो फिर वही बात हो जाती है कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी घर में पैदा हो, अपने घर में ना पैदा हो. तो अगर बदलाव का वाहक बनना है, if you want to lead a change, it
starts with you. And with that thought I left my job. मैं हांगकांग से 14 जनवरी 2012 को, भी तारीख याद है, 14 जनवरी 2012 को मैं इंडिया लैंड किया, सब कुछ वहाँ पे वाइंड अप करके। आई स्टेड देयर फॉर ऑलमोस्ट 2 years। यहाँ आ गया, और यहाँ आने के बाद उस समय पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी। इट वाज स्टिल अ सोशल मूवमेंट वेयरइन पीपल वी वर आस्किंग, we bunch of people were asking for a strong anti-corruption law, and when we didn't get it through all those means of protesting and hitting the streets, then with public consultation we felt like now is a time when we should also try to use this political tool as well. We should provide an alternative of the established politics, of the traditional politics. और तब कुछ महीनों के संघर्ष के बाद ये पार्टी, जब मैं ज्वाइन किया था तब ये पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं थी, तब तो आंदोलन था। एंड वी यूज्ड टू हेट दिस पॉलिटिकल क्लास, मतलब इतना कि हम बता नहीं सकते। लेकिन जब लगा कि यार सारी समस्याओं की जड़ यही है, इसी जड़ को ठीक करना पड़ेगा, इसी को नरिश करना पड़ेगा, तब हमने वो रास्ता भी अख्तियार किया कि ठीक है, सड़क पे भी संघर्ष चलेगा और संसद में भी संघर्ष चलेगा। और तब ये आम आदमी पार्टी फॉर्म हुई। मैं आंदोलन के साथ भी था, तो मैं पार्टी के साथ भी आ गया। मतलब जैसे जैसे फिर यात्रा आगे बढ़ती गई, जो जो जिम्मेदारियां मुझे मिली उन जिम्मेदारियों को मैं निभाता रहा। शुरू 2013 में पार्टी ने चुनाव लड़ा, 49 दिन की सरकार बनी, सरकार गिर गई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बहुत नेगेटिविटी हुई। फिर 14 में चुनाव लड़े, बुरी तरह से हार गए और लगा कि एकदम खत्म हो जाएगा सब कुछ। देन वी अगेन बाउंस बैक लाइक फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस सॉर्ट ऑफ। फिर 15 में चुनाव हुआ और हमने स्वीप किया यहाँ पे, उसके बाद डिलीवर किया और दोबारा स्वीप किया। दोबारा पहली बार 49 दिनों की सरकार में लोगों को लगा कि बाई चांस आ गए, झटके में आ गए, लेकिन हमने प्रूव किया कि बाई चांस नहीं आए हैं, हमारे इंटेंट की वजह से आए हैं। और उस इंटेंट को काम करने की इंटेंट ही था जो हमें बाकी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल क्लास है उससे अलग बनाता है। और बहुत सारे बेंचमार्क ऑनेस्ट पॉलिटिक्स में हमने सेट किए, टेढ़े सीधे रास्ते बहुत सारे आए, चलते फिरते रहे, गिरते लुढ़कते रहे, गलतियां हुई, उन गलतियों से हमने सीखा भी। कभी ये नहीं कहा कि हमें दुनिया की सारी समस्याओं और उन समस्याओं के सभी समाधानों के बारे में पता है। हमने हमेशा वी एक्टेड लाइक अ क्राउड सोर्स पॉलिटिकल पार्टी wherein we always believe that there's more number of smart brains available outside the room that we are currently sitting in। तो उस हिसाब से काम करते रहे और हमने 15 का सक्सेसफुल टेन्योर निकाला और दोबारा फिर इलेक्शन हुए। तो मैं फिर 19 में भी चुनाव लड़ा लोकसभा का। I stood third and I lost the elections. I had my security deposited, वो भी दिक्कत रही। 2 लाख के आसपास वोट मिले मुझे। फिर दोबारा चुनाव लड़ने का मौका मिला मुझे विधानसभा का, तो आई वॉन विद अ रिकॉर्ड मार्जिन इन माय असेंबली विच इज तिमारपुर दिल्ली एरिया। उसके बाद अब ऐसा दुर्भाग्य रहा कि नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी विधानसभा पड़ती है। जैसे ही चुनाव जीते, अभी महसूस भी नहीं कर पाए थे कि जीते हैं कि दंगे शुरू हो गए दिल्ली में। दंगों से भी निपट ही रहे थे कि फिर लॉकडाउन शुरू हो गया। तो बड़ा टफ टाइम जा रहा है फॉर मोस्ट ऑफ द एमएलएज, आई थिंक फॉर ऑल द एमएलएज ऑफ दिल्ली। एंड ऑफ कोर्स दिस पैंडेमिक वी आर टॉकिंग अबाउट इज बीइंग फॉट बाय एवरीवन इन दिस कंट्री एंड इन दिस वर्ल्ड। बट ये रही मेरी शॉर्ट में एक छोटी सी क्रिस्प यात्रा। इसी बीच लिखने पढ़ने का हमेशा से जुनून रहा। मैं अंदर से मन से अपने आप को एक लेखक ही मानता हूँ। कभी लेखनी सियासी होती है, कभी साहित्यिक होती है। तो 4 किताबें भी लिखी, एक म्यूजिक एल्बम भी निकाला, प्रोफेशनल आर्चर भी रहा, रिकर्व आर्चरी की भी ट्रेनिंग ली, एक इंटरनेशनल म्यूजिक वीडियो में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। तो ये सब लेफ्ट राइट सेंटर सब चलता रहता है। मतलब मुझे लगता है कि रचनात्मकता बनी रहती है अगर, तो मनुष्यता भी बनी रहती है। आदमी अगर भावुक है तो मनुष्य है, यही वो गुण है जो उसको पत्थरों से अलग करता है। और भावुकता बनी रहने से, मनुष्यता बनी रहने से गलतियां भी कम होती हैं। तो कोशिश ये होती है कि जब सोऊं बिस्तर पे तो आदमी की तरह सोऊं, अंदर का जो रस है वो बरकरार रख के सोऊं। इसलिए लिखना, पढ़ना, गीत, संगीत, स्पोर्ट्स, ये सब साथ में पैदल चलता रहता है। तो ये एक प्रिसाइज टोटल जो आपने कहा कि आपकी यात्रा अब तक की रही, वो है। ओवर टू यू। इन इतनी सारी फेसेस ऑफ लाइफ में आपका सबसे डिफिकल्ट मोमेंट क्या था? व्हाट वाज द डिफिकल्ट डिसीजन दैट यू मेड? डिफिकल्ट डिसीजन, मुझे लगा कि देखिए, मुझे लगता है कोई भी निर्णय आपके लिए तब तक ही डिफिकल्ट है जब तक आप उससे डर रहे हैं। ठीक है, कोई निर्णय कठिन क्यों है?
क्योंकि आप कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद आपको लगता है कि आपका कैलकुलेशन आपको पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा दे रहा है, तो आप कंफर्टेबल मान लेते हैं डिसीजन को, और नेगेटिव पॉइंट दे रहा है, टाइट हो रहा है, टाई हो रहा है। तो मैं कभी किसी भी बात को लेके, मतलब एक मुझे लगता है कि मेरे अंदर है कि मैं टफ सिचुएशंस में ज़्यादा सॉफ्टली रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो डिफिकल्ट सिचुएशन में ज़्यादा स्मूथली दिमाग काम करता है मेरा। एक हर आदमी का अपना स्वभाव होता है, अपनी प्रवृत्ति होती है, और मेरी वो प्रवृत्ति है। तो ऐसा कोई डिफिकल्ट डिसीजन रहा ये तो मैं नहीं कहूँगा। जैसे एक डिफिकल्ट डिसीजन था, थोड़ा सा था, बट अगेन इट कम्स डाउन टू दैट कैलकुलेशन विच मेक्स दैट डिसीजन डिफिकल्ट और ईजी। कि लोकसभा चुनाव लड़ गए, हार गए, अब क्या करना है, अब आगे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना, ये बहुत आगे पीछे होते रहे। फिर मेरा तरीका ये है कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है ये सोच लो, तो बाकी सब अपने आप आसान हो जाता है, तो चीज़ें फिर आसान हो जाती हैं। हाँ, ये फेज जो अभी का चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये फेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, मतलब सभी की ज़िंदगी का है, जो फेस कर रहे हैं उनके लिहाज से भी, और जो इस डिफिकल्ट टाइम में सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। आई हैव टू प्ले बोथ द रोल्स एट द सेम टाइम। तो मुझे लगता है कि ये जो दौर है ये बड़ा डिफिकल्ट है, बट अगेन डिफिकल्ट है, दौर चाहे कैसा भी हो गुजरता ही है, ये भी गुजरेगा। So in your life, who was the influence जिसकी वजह से आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की? नहीं, मैंने बताया, मैंने पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन की थी। जब मैं आया था सब कुछ छोड़ छाड़ के घर फूंक के तमाशा देखने आया था, तो उस समय तो ये सामाजिक आंदोलन था, उस समय ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, सोशल मूवमेंट था। सो अब जब लोग आते हैं, अब तो लोगों को पता है ना कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, दिस इज द पार्ट, दिस इज द ट्रैक, दिस इज हाउ वी नीड टू मूव अहेड, गो अहेड। उस समय तो पता भी नहीं था। एक नाव पे सवार होने आए थे जो डूब रही थी, इस उम्मीद से कि इस नाव को डूबने से बचा लेंगे। कितना बचा पाए वो पता नहीं, पर संतोष मन में है कि आज की तारीख में हमारे पास पैसा नहीं है, पर रात में सुकून की नींद आती है कि जो जीवन है वो सिर्फ मेरे काम नहीं आ रहा, किसी और के भी काम आ रहा है। हमारे बीच में काफी सारे यूथ हैं, वो अगर आपसे जुड़ना चाहें, पार्टी को जोड़ना चाहें, तो वो लीडरशिप रोल पे कैसे काम कर सकते हैं? तो मुझसे जुड़ के कहाँ से नेता बनेंगे? उन सबको लीडरशिप रोल्स लेनी पड़ेंगी, मुझसे जुड़ के मेरे साथ काम करते रह जाएंगे। मैं तो उन सभी से आग्रह करूंगा कि आप सब लोग मशाल बन जाइए, आप सब लोग दीपक बन जाइए। आप जहां भी हैं वहां रोशनी फैलाइए, आप जहां भी हैं वहां एक मशाल के तौर पे काम करिए। और देखिए, जब आप, जैसे अब मैं जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर की अगर हम बात करें, इतना पीड़ादायी आपदा का वक्त है कि कहते हैं कि यही वो वक्त है, यही वो दौर है कि जब जो टफ मेटल है उसकी पहचान होती है। लीडरशिप क्वालिटी की पहचान टेस्टिंग टाइम इसी को कहते हैं। तो जितने भी लोग जिन्हें लगता है कि वो नेतृत्व कर सकते हैं, वो लीड कर सकते हैं, लीड करने का मतलब समाज को, समाज में रह रहे लोगों को एक नई दिशा दे सकते हैं अपने रचनात्मक अप्रोच के, अपने क्रिएटिव अप्रोच के जरिए। उन सब लोगों को अपने को सहेज के, अपने को संभाल के आगे आना चाहिए। और उनके आसपास समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, मुश्किलों का पहाड़ खड़ा पड़ा है, उसको एक एक करके, एक और एक छोर पकड़िए, एक एक करके उसको एड्रेस करना शुरू करिए। लोगों को राशन की मदद चाहिए, लोगों को इलाज की मदद चाहिए, किसी को घर जाना है, किसी को और किसी किस्म की मदद की जरूरत है, किसी को किराएदार परेशान कर रहा है, किसी की नौकरी चली गई है। आप ये देखिए कि किसके लिए क्या कर सकते हैं, और बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आप एक बार शुरू करें। मैं आपको बताऊं, मेरे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, मेरे से छोटे हैं, भैया भैया कहते हैं, भास्कर नाम है उनका। तो उनको लगा कि यार मैं अकेला मिडिल इनकम ग्रुप का आदमी, मैं क्या कर सकता हूँ, फिर भी कोशिश करके देखता हूँ। He stepped out and he started asking others to fund him so that he can help others। और उन्होंने फिर वो कैंपेन शुरू किया, और वो हम लोगों को उस अपने इंडिविजुअल एफर्ट से कई टन अनाज दे चुके हैं, जो हम कई परिवारों में बांट चुके हैं। तो आप कितना कर सकते हैं ये सोचने की बजाय आप कर सकते हैं इस पे विश्वास करके, और आगे बढ़ जाए। जस्ट डू इट। ज्यादा कैलकुलेट मत करिए, ज्यादा कैलकुलेट करना पॉलिसी पैरालिसिस को जन्म देता है। तो आप सब लोग, जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं, शुरुआत वहीं से शुरू कर, वहीं से करिए और ये करिए। समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनको आज जो आपदा का दौर है, इसमें उम्मीद की किरण वही लोग हैं जिनके मन में करुणा है, दया है। अगर आप एक ऐसा हृदय रखते हैं, एक ऐसा दिल है आपके पास जो करुणा से भरा हुआ है, जो मानवता से भरा हुआ है, तो बस आपको और कुछ नहीं चाहिए। आपको कोई दिलीप पांडे नहीं चाहिए, आपको कोई चे गेवरा नहीं चाहिए, आपको कोई नहीं चाहिए, आप अकेले सफिशिएंट है।
आपके अनुसार इतने सारे आपने कॉजेस पे काम किया है, फ्रॉम एजुकेशन टू हेल्थ केयर टू लाइवलीहुड, इतने सारे चीजों पर अब आप पूरी असेंबली को सर्व कर रहे हैं, तो उसमें से आपके अनुसार एक कोई कॉज बताइए दैट इज वर्थ फाइटिंग फॉर, और जिसमें आपको लगता है हम इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इन टर्म्स ऑफ CSR कौन सा कॉज है जो आपके एरिया ऑफ ऑपरेशन में ज्यादा मायने रखता है, और क्या कभी किसी कंपनी ने आके कोई PPP मॉडल भी आपके साथ बनाया है, इस बारे में बताइए। मैं एक की बजाय 3 चीज़ों का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी समझूंगा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊं, चाणक्य थे, तो चाणक्य ने अपने एक जो कौटिल्य शास्त्र था उसमें उन्होंने एक जगह लिखा हुआ है कि जहाँ 3 चीज़ें नहीं हो वहाँ किसी भी आदमी को रहना नहीं चाहिए। पहली चीज़ उन्होंने कही है शिक्षा, दूसरी चीज़ उन्होंने कही है सुरक्षा, और तीसरी चीज़ उन्होंने कही है स्वाभिमान। इन 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, तीनों का एक साथ, एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर आपको कहीं अच्छी शिक्षा मिल रही है पर वहाँ आप सुरक्षित नहीं है तो वहाँ नहीं रहना चाहिए। आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है, लेकिन आपका स्वाभिमान खतरे में है, आपको आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को रोज हर्ट किया जाता है, तो वो जगह भी आपके लिए नहीं है, आप वहाँ पे सुकून से जी नहीं पाएंगे। तो इसके कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूँगा कि 3 चीज़ें ऐसी हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, अगर हम बात करते हैं तो किसी भी सरकार का, किसी भी एंटरप्रेन्योर का, किसी भी सोशल एक्टिविस्ट का प्राइम फोकस ये 3 चीजें होनी चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरमेंट। ये 3 ऐसी प्राइम चीजें हैं कि अगर किसी सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर अगर ये आ जाती हैं तो वो सरकार, आप समझ लीजिए कि वहां के लोगों की करने वाली सरकार होगी, वहां के लोगों के हक में काम करने वाली सरकार होगी। मेरा खुद का जो इंटरेस्ट है एजुकेशन पे, मनीष जी अच्छा काम कर रहे हैं, हेल्थ पे हमने अच्छा काम किया, लेकिन इस पैंडेमिक की प्लानिंग नहीं थी, किसी ने नहीं सोचा था कि ये पैंडेमिक आएगा, तो वो प्रयास इस विशाल आपदा की स्थिति में, इस बड़ी आपदा की स्थिति में छोटे से पड़ गए, उसको हम बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और एनवायरमेंट के ऊपर भी पैरेलल काम कर रहे हैं। बट ये these are the 3 things that I believe should be part of any strategy that is being set upon for strategic development or sustainable development. Have you implemented any PPP project on the ground, as in a corporate and you and a foundation coming together, or ऐसा कोई project आपने CSR Personally, I haven't done, but yes, government has done a couple of such projects. There are certain hospitals in Delhi wherein the testing facilities or dialysis facilities have been set up with in the same PPP model. So I do not have any personal expertise in engaging with such entrepreneurs and implementing, or such industrialists and implementing those in PPP models. I don't have any such personal expertise in that. But yes, it's been done in Delhi government. Being in politics for so long, of course, you started from a social movement. What kind of legacy would you want to leave behind? पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि मैं कोई that people will know. नहीं, मैं तो ऐसे ही हल्का फुल्का आदमी हूँ, मैं कोई लेगेसी छोड़ के भी जाऊंगा कि नहीं, मुझे बिल्कुल घंटा पता नहीं है। बड़ा सामान्य से, बड़ा मतलब अंदर से, अपनी आत्मा से, अपनी रूह से बड़ा ठेठ, जो देहाती किस्म का आदमी होता है ना, मैं वैसा आदमी हूँ, बड़ा अजीब सा हूँ। आई सीरियसली डोंट बिलीव दैट आई एट ऑल लीव एनी लेगेसी। बट अगर कोई याद करे तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे याद करे कि पता नहीं यार, बड़ा आदमी तो नहीं था पर अपना आदमी था, तो अगर इतना कहते हैं तो मेरे लिए वो काफ़ी है। अगर मैं उनका अपना हो जाता हूँ तो मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे जीने का मकसद पूरा हो जाता है। अभी गवर्नमेंट काफी सारे नए रूल्स, रेगुलेशंस ये सब लाती हैं, बट हमारे तक ये इसकी सूचना पहुंचती नहीं है। तो क्या आपको लगता है, जैसे हमने डिजिटल पार्लियामेंट शुरू किया है और काफी सारे भी अलग अलग सुविधाएं हैं, उसके जरिए आप यूथ से कनेक्ट करके उनको एजुकेट करना चाहें, और ऐसे जो टूल्स हैं उसमें क्या क्या फीचर आपके अनुसार हैं? देखिए, I think despite all that this pandemic is doing to us, to our governments, to our people, I think
this pandemic has also taught us so many good things. So many good things का मतलब इस पैंडेमिक ने हमें बता दिया कि बगैर पिज्ज़ा के भी जी सकते हैं, बगैर अमेज़न पे शॉपिंग करने के भी ज़िंदगी चल सकती है, बगैर मतलब के सड़क पे गाड़ियाँ दौड़ाए हम जी सकते हैं, अपना जीवन जिया जा सकता है। ये इस पैंडेमिक ने हमें सिखाया है। और अगर अब तक नहीं तो अब तो लोगों को समझ में आ गया है कि आने वाले वक्त में अभी ये कोरोना कब तक है, कब तक जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं है। सो इन दिस type of situation, I think these kind of tools wherein you can connect with the youth or your voters or your constituents through these kind of platforms, like you're talking through Zoom or any such platform. These platforms and technologies are going to play a very important role when it comes to engaging and working for your constituents. तो आने वाला जो वक्त है वो इसी तरह के डिजिटल कम्युनिकेशन का होने जा रहा है, इस तरह के टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स का होने जा रहा है। आज देखिए कोई नहीं जानता था, पर सब छोटे छोटे बच्चे भी घरों में बैठ के और ऑनलाइन अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, हम और आप बात कर रहे हैं। फिजिकली लोगों का मिलना पहले की तरह कब संभव होगा किसी को पता नहीं है, कब बड़ी बड़ी गैदरिंग्स मीटिंग्स के जरिए सरकारें अपने मतदाताओं को बता पाएंगी उनकी योजनाओं के बारे में, बिल्कुल नहीं पता। लेकिन इन ऑनलाइन टूल्स ने, इन टेक्नोलॉजीज ने एक नया एवेन्यू इस पैंडेमिक टाइम में ओपन कर दिया है, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और सिर्फ कम्युनिकेट नहीं कर सकते वन साइडेड, आप एंगेज कर सकते हैं। आप एंगेज करने के बाद अपनी पॉलिसीज को, प्रो पीपल पॉलिसीज को उन तक पहुंचा सकते हैं, उनको टीच कर सकते हैं कि इसका फायदा कैसे उठाया सकता है। तो ऑफ कोर्स नाउ such technological platforms are going to play a very eminent role in coming days when it comes to governance. We are digital parliament. How can you think we can add value to your endeavors and your work? देखिए, सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद हमें लगता है, हम ये मानते हैं कि whatever we do, we announce, we create policies, there still remains some gap between the policy and the beneficiary of the policy. If this digital parliament and your team and your group of people can somehow, anyhow fill that gap of communication, that gap of reaching out to the last voter or last household with the policy that can benefit him, अगर उस गैप को फिल करने में ये टेक्नोलॉजी, ये प्लेटफॉर्म, ये आपकी टीम किसी भी तरह का रोल प्ले कर पाए, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ह्यूमेन भी होगा और बड़ा डेमोक्रेटिक भी होगा। हमारे जैसे भारतीय लोकतंत्र में इस तरह के इनिशिएटिव्स अगर गवर्नेंस में और पॉलिसीज की डिलीवरी में अगर सहयोग करने लगे, तो इन प्लेटफॉर्म्स के होने का मकसद और बड़ा हो जाता है, इनका कद और बड़ा हो जाता है। Absolutely, absolutely. I would like others also to ask questions now. I think so, Mr. Jayesh Barshe, he has a question for you. Jayesh, you can open your camera and mic and ask, huh? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I think Sridhar has asked a question in the chat. So first of all, we can ask that. Okay. Now, as you are, Sridhar, would you like to join us? Yeah. Sridhar ji mute hai. Yeah. Okay. Sorry. Thank you very much for the kind words of inspiration, and we really appreciate the thoughts. One question I had was, before joining the movement and politics, you had some perception about the system that it needs to be changed from the base itself, and now for some time you are in the system. So what are your thoughts? I mean, are some things changed from before, and how, I mean, we can see that there is a hope that the system can be changed. So, what are your thoughts? So the difference is that when you are outside of a cyclone, you can take picture of cyclone, you can comment about it, you can take selfies with it. But when you are inside the cyclone, you have to work it out. You have to work your way out of it, right? You have to, get your hands dirty and get the things done. जैसे ही आप सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, आप वो लग्जरी खो देते हैं कि आप सिर्फ एक्यूज करें, आप सिर्फ स्पीच दें, आप सिर्फ ज्ञान दें, आपको कुछ करना पड़ता है, आपको डिलीवर करना पड़ता है। The moment I became part of the system, we started
working within it, and we started getting our hands dirty on it, and we started working towards the solution of it. तो वो लग्जरी जो आपको पहले थी, जब आप सिस्टम के बाहर होते हैं, उस लग्जरी को आप खो देते हैं. अब आप सरकार का हिस्सा हैं, आपकी कोई पॉलिसी गलत है, आपके इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे. You have to do the policy level interventions. You have to communicate with the government to get that policy corrected if it is not serving its purpose. You have to act as a bridge. Since I'm elected representative, you have to act as a bridge between your constituents and the government. You have to bring their concerns to the government. You have to take the pro-people policy of the government to those people. तो अब आप उस मशीन का हिस्सा हो जाते हैं, जिस मशीन को पहले आप बाहर से देखा करते थे, उसके बारे में कमेंट किया करते थे. You lose that luxury when you become the part of the machine itself. अब मशीन का हिस्सा है तो आपको कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है उस मशीन का, उसको अचीव करने में अपने कंट्रीब्यूशन को इंश्योर करना पड़ता है. That's what. Okay, so I have a question. Maybe because my camera is not working. So, sir, मेरा question education और youth से related है. जी. So, being a part of system, I would like to ask कि आपको Indian education system में ऐसे क्या changes लगते हैं जो कि होना चाहिए for youths as well, because continuously I am into academics. So education system में आपको ऐसे क्या changes लगते हैं? मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरा फेवरेट टॉपिक है, और मतलब आप हिंदी समझते हैं, आई होप आप लोग. भाई साहब, yes sir, yes sir, एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश हुआ पड़ा है, मतलब yes sir, totally agree. मतलब घंटा बजा दिया लोगों ने, जो भी जिन लोगों ने भी पॉलिसीज बनाई हैं. मैं उत्तर प्रदेश के कस्बे में पढ़ता था, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था, और क्या क्या मुझे सिखाया गया है. आई हैड टू अनलर्न सो मेनी थिंग्स टू बी व्हाट आई एम राइट नाउ. मैं आपको बताऊं, मुझे जब आपको भी याद हो अगर, तो जहाँ से भी आप पढ़े हो, जब आप पढ़ते हैं आपके बिगिनिंग के क्लासेस में, तो आपको पहले लेटर्स बताए जाते हैं, फिर वर्ड्स बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं. yes. लेटर के बाद जब वर्ड सिखाते हैं तो सिंपल वर्ड्स बताते हैं, और सिंपल वर्ड्स के बाद मात्राओं के साथ सब सिखाते हैं. मुझे याद आता है मेरी किताब में क्या लिखा हुआ था, वो सुनिए आप. जब मैं पढ़ता था, मेरी किताब में लिखा हुआ था, राम खटपट मत कर राम खटपट मत कर, बाहर जा सामान लेकर आ. ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस सिखाते हैं. और सीता चटपट घर चल, दोनों में डिफरेंस समझिए आप. एक बच्चे का दिमाग बड़ा अनकॉन्शियस तरीके से आप उसके साथ खेल रहे होते हैं. आपने जानबूझकर बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से उस बच्चे को, जो उस किताब को पढ़ रहा है, आपने उसको ये सिखाया कि राम लड़का है तो राम बाजार जा सकता है, और सीता लड़की है तो सीता का काम है घर में रहना. क्यों सिखाया गया मुझे ये? क्यों लिखा गया मेरी किताब में कि सीता घर पे रहेगी और राम बाहर जाके सामान लेके आएगा? मुझे सिखाया जाता है, जब मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ, जब शब्दों का ज्ञान हो गया, तो मुझे मेरे स्कूल में सिखाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, अपोजिट वर्ड सिखाते हैं ना, विलोम शब्द सिखाते हैं, विपरीत शब्द सिखाते हैं. मुझे क्या सिखाया गया? आसमान का विलोम धरती है, स्त्री का विलोम पुरुष है. अब बचपन से बच्चा सीख रहा है कि आदमी का उल्टा औरत होता है. जब वो बड़ा होता है तो उसी औरत से लड़ना शुरू कर देता है. उसको बताया नहीं गया कि दरअसल इस नेचर का हिस्सा है आदमी औरत, और आदमी और औरत मिलके और बाकी सारे मिलके, जेंडर्स मिलके इस नेचर को कंप्लीट करते हैं. जो हम देख रहे हैं दुनिया में जो भी एग्जिस्ट करते हैं उसे कंप्लीट करते हैं. लेकिन मुझे वो नहीं सिखाया गया. मुझे सिखाया गया आसमान का उल्टा धरती और आदमी का उल्टा औरत. अब मैं जब बड़ा हुआ तो या तो मैं फेमिनिस्ट बन जाऊंगा, या तो मैं मेल राइट्स की लड़ना शुरू कर दूंगा. और इस चक्कर में क्या होगा कि जब समाज बढ़ गया स्त्री और पुरुष में, तो समाधान भी बढ़ गया, सोल्यूशन भी बढ़ गया. अब ये लड़ाई अनंत काल तक चलती रहेगी. आप समझिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम से वैल्यूज को गायब कर दिया गया. स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, इस प्रकृति के पूरक हैं, इस दुनिया के पूरक हैं, ये हटा दिया गया है हमें. सिर्फ ये जो एजुकेशन हम, और देखिए क्या है, हमें मुझे बचपन में कहानियां क्या पढ़ाई गई, मुझे कहानियां क्या सुनाई गई. मैं अपना गुस्सा आपके सामने, मुझे सिखाया गया कि एक राजकुमार है, पंख वाले घोड़े पे आता है, और सब कुछ होने के बाद आखिरी में दो ही चीजें मिलती हैं, या तो उसको राजकुमारी मिल जाती है या उसको छिपा हुआ खजाना मिल जाता है. मतलब मेरी कहानियों ने, बचपन की कहानियों ने मुझे 3 चीजें सिखाई खाली. पहली चीज सिखाई, फैंटेसी लैंड में जियो, घोड़ा राजकुमार, पंख वाला घोड़ा, ये बताया गया मुझे एक बात. दूसरा क्या बताया गया कि जिंदगी में या तो वो राजकुमारी तुम्हारे लिए उद्देश्य, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होनी चाहिए, या वो खजाना तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए, बाकी कुछ मैटर नहीं करता है. राजकुमारी भी कैसी? सुंदर वाली, गोरी राजकुमारी, स्नो व्हाइट की तरह राजकुमारी. तो मैं यहाँ पे रेसिस्ट भी हो जाता हूँ, मैं यहाँ पे जेंडर बायस भी पैदा कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे फैंटेसी लैंड में जीने की वजह से बेवकूफ भी हो जाता हूँ. आप देखिए मेरा एजुकेशन सिस्टम क्या सिखा रहा है, आप देखिए मेरी किताबें मुझे क्या सिखा रही हैं. तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत
सलीके से तरीके से चेंज करने की जरूरत है सर। बट अभी चेंज क्या आप लाना चाहेंगे, क्या क्या एग्जैक्टली? मेरे 2 बच्चे हैं, मैं दिल्ली के अंदर हम कर रहे हैं, बाकी देश में ये प्रयोग हो ऐसी हमारी कामना है। हम ही बाकी राज्यों में जाके वो काम करेंगे ऐसी हमारी कोई कामना नहीं है। कोई भी सरकार करे, बहुत सारे सरकारों के लोग और बहुत सारे कंट्रीज से लोग दिल्ली में आ रहे हैं और सिस्टम को समझने की, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं उनको भी सिखाता हूँ, लेकिन मैं उनको वो सिखाता हूँ जो किताबों में नहीं है। दिल्ली के अंदर का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें वो सारी चीजें डालने की कोशिश की जा रही है जो किताबों में नहीं है। उसमें हम वो चीजें भरने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें वैल्यूज कहते हैं। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम की दिक्कत क्या है कि वो हमें इंजीनियर बना देता है, डॉक्टर बना देता है, IAS PCS बना देता है, लेकिन अच्छा इंसान कैसे बने कभी बताता नहीं है। हमें बताता ही नहीं है कि हमारे स्कूल में खाली टीचर नहीं, जो सफाई कर्मचारी झाड़ू लगा रहा है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है कि वो स्कूल को अगर साफ रखता है, कचरा मुक्त रखता है, तो हम सलीके से सुकून से उसी स्कूल में पढ़ पाते हैं। ये किसी स्कूल में कोई बताता ही नहीं। आप समझ रहे कहाँ कहाँ गलतियां हैं और कितनी सारी गलतियां हैं। इन तमाम चीजों को हम दिल्ली के अंदर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप किसी भी स्टूडेंट से पूछिए तेल का भाव क्या है, तो वो बोलेगा कि तेल का जो भाव है वो 70 रुपए लीटर है। 70 रुपए लीटर कैसे है वो तेल का भाव? तेल तो जमीन से निकला और जमीन ने उस आदमी से पैसा नहीं मांगा जिसने तेल निकाला। उस आदमी ने ये दाम तय किया कि 70 रुपए लीटर का तेल होगा। उस तेल की वैल्यू क्या थी? फ्री थी। इस स्कूल में बच्चा पढ़ता है, 12 साल बाद, 14 साल बाद, 18 साल बाद पढ़ लिख के उसका लक्ष्य क्या होता है? 8 लाख रुपए की नौकरी करनी है पर एनम वाली भाई। तो उसकी कीमत 8 लाख रुपए नहीं है। उसको रियलाइज नहीं करवा रहा है कोई कि उसकी वैल्यू क्या है। वो वैल्यू सिस्टम मिसिंग है हमारे एजुकेशन सिस्टम से। तो इस तरह की चीजों पे हम काम कर रहे हैं, जहां हम टीचर्स को ट्रेन करने की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, नई टीचिंग टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वैल्यूज जैसे बच्चे को सिखाते हैं, आप के में से किसी के भी अगर बच्चे हो तो हम सब लोग अपने बच्चों को बोलते हैं ध्यान देके पढ़ो, ध्यान देके पढ़ो। कोई बच्ची को ये बताता है कि ध्यान कैसे देते हैं? छोटे बच्चे को क्या पता ध्यान कैसे देते हैं? उसका मन तो खेलने में लगता है, उसका मन मौज मस्ती करने में लगता है, उसकी कोई गलती नहीं है, क्लास में उसके दोस्त बैठे हुए उनसे बात करना चाहता है, कैसे ध्यान दे? वो कोई बताता ही नहीं उसको ध्यान कैसे दे। हम दिल्ली के स्कूलों में बताते हैं कि ध्यान कैसे देते हैं। हम दिल्ली के स्कूलों में बताते हैं कि मार्क्स आना अच्छी बात है, लेकिन मार्क्स के पीछे भागो मत, सीखना उससे भी ज्यादा जरूरी और अच्छी बात है। सब कुछ सीख जाओ, लेकिन अपने बड़ों की इज्जत करना अगर नहीं आता हो तो तुम्हारा सीखना बेकार है, तुम्हारा कैरेक्टर डाउन है, खत्म है तुम्हारा। ये भी सिखाया जाता है। ये वो मिसिंग ब्लॉक्स हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के, जो आपको सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं, अच्छा इंसान बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जयेश भाई कभी दिल्ली आइएगा तो बैठ के डिटेल में चर्चा करेंगे। और मैं आपको सलाम है आपकी सोच को। मैं एक टीचर हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, मैं अलग अलग स्ट्रीम में पढ़ाता हूँ, कभी आर्मी एस्पिरेंट्स को, कभी ICSE CBSE, और आपकी सोच को सलाम है। मैं भी यही इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो दिस वाज मिसिंग, सो अनएक्सपेक्टेड था आपसे। थैंक यू सर। एंड सर एक और क्वेश्चन है, इफ अलाउ करते हैं तो। सर आजकल इन दिस मतलब जैसे कोविड का लॉकडाउन टाइम है, इसमें आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के या दूसरे भी लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, उनसे कैसे मिल रहे हैं? क्या ऑनलाइन ऑप्शंस में कुछ ऐसा नया टूल दिखा है आपको, या फिर कैसा तो आप क्या कर रहे हैं इस बारे में? दो चीजें। एक तो ये कि मैं पूरी दिल्ली का रिलीफ वर्क देख रहा हूँ। मैं जो ड्राई फूड, ड्राई राशन का रिलीफ वर्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी दिल्ली का देख रहा हूँ, खाली अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं। मैं पूरी दिल्ली का देख रहा हूँ, जिसमें मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस काफी काम आ रहा है। मैं चीजों को ऑर्गेनाइज कर पा रहा हूँ, टीम्स बना के मैनेज कर पा रहा हूँ, डेलीगेट कर पा रहा हूँ। तो वो पूरी दिल्ली का देख रहा हूँ मैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 वार्ड हैं, हर एक वार्ड में लगभग 50,000 के आसपास की आबादी है। कुल 2,10,000 वोटर्स हैं और 3 लाख के आसपास लोग हैं। और मैंने इनके साथ रेगुलर जूम पे मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। मैं अपने एक्टिव वॉलंटियर्स की मीटिंग करता हूँ जूम पे। मैं उनके फिर इसके बाद मैंने व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हुए जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए हेल्थ वॉलंटियर की टीम बना ली है। हमारे जितने भी अच्छे काम हैं उनको स्प्रेड करने के लिए सोशल मीडिया की टीम बना ली है। जितने डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि काम तो सारे बंद पड़े हुए हैं डेवलपमेंट के, लेकिन मेंटेनेंस का काम हो रहा है, तो मेंटेनेंस के काम होते रहे, इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बना के उनको स्प्रेड कर दिया है, उनके रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप्स बना दिए हैं। तो वर्चुअली एवरीथिंग वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कीप इन कंट्रोल। ओके सर। Anura has a question for you. Anura, would you like to come forth? Anura? Sure. Yes, ma'am. अनुरा, अनुरा पहले अपने नाम का मतलब, बड़ा अद्भुत नाम है आपका।
हाँ, ये क्वेश्चन मुझे काफी मतलब आंसर करना पड़ता है। अनुराग से ओह, बना है, तो लव अफेक्शन हाँ मान हाँ, सकते मैं समझ गया समझ गया। ठीक ठीक, हैं। बढ़िया। थैंक यू सर। आपने एजुकेशन की बात करी। बिफोर आई आस्क द क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट, सेकंड ईयर स्टूडेंट इन दिल्ली, एंड थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन स्लैम आउट लाउड, मैं एक्चुअली दिल्ली के एक स्कूल छतरपुर में गई, मतलब मैं जाती हूँ एक 2 महीने में एक महीने में 2 बार बच्चों को पोएट्री सिखाने के लिए, एंड ओके, the way they have improved, it's commendable, so kudos to your efforts. So my question is कि जो नेशनल ड्राफ्ट पॉलिसी 2019 जो सबमिट किया गया था, और आपने एजुकेशन की बात करी, इट टॉक्स ऑफ रिफॉर्म्स फ्रॉम the primary to the higher education. Do you think that the policy and the drafts and the amendments submitted, they cater to your concerns, and do you think that it can bring a change? देखिए, when it comes to education policy, I think what we have got in Delhi and which is implemented and it has delivered also, this is the policy that we strongly believe in as a part of Delhi government. That's one. Second, ये कि दिल्ली के अंदर मल्टी डायमेंशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। शायद आपको पता हो, आप चूंकि दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली की सरकार के पास पहली से 5वीं तक के स्कूल नहीं होते। जो हमारे स्कूल है वो 6वीं से लेकर के और 12वीं तक के होते हैं, और 12वीं के बाद फिर अपना कॉलेज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो शुरू हो जाता है। तो हम इस बात से बहुत परेशान रहते हैं कि पहली से 5वीं तक में जो बच्चा है वो पढ़ के जब दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में आता है, उसका जो लेवल है वो बहुत कमज़ोर, बहुत वीक होता है। शुरू में तो हालत ये थी अनुराग कि 5वीं क्लास से जब बच्चे 6th क्लास में आते थे तो अपनी ही क्लास की हिंदी की किताब नहीं पढ़ पाते थे। वो ये हालत थी। आपको अगर याद हो तो हमने फिर दिल्ली के अंदर रीडिंग मेला ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, जिसमें हम पार्कों के अंदर, गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर वॉलंटियर्स को हमने कॉल आउट किया कि भाई जो भी वॉलंटियर करना चाहते हैं वो बाहर आएँ और इन बच्चों को रीडिंग मेला इनिशिएटिव के तहत पढ़ना सिखाएं, सिर्फ पढ़ना सिखाएं। और हमने इम्प्रूव किया और 2.25 लाख बच्चे जो नहीं पढ़ पाते थे उनको पढ़ना आया। इस तरह का चैलेंज हमको यहाँ पे हैंडल करना पड़ रहा है, जहाँ पे हमें बच्चे हमारे स्कूलों में आते हैं और बहुत कमज़ोर आते हैं और उनको एक लेवल तक लाना पड़ता है, फिर उसमें इम्प्रूव करना पड़ता है। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है वो दिल्ली के का जो पिक्यूलियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको कैटर नहीं करता। ठीक है, तो एज इट इज वो पॉलिसी या कोई और पॉलिसी हम दिल्ली में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हमारी मुश्किलें आसान हो जाए, मैं ऐसा नहीं मानता, हम ऐसा नहीं मानते। प्लस किसी और पॉलिसी को एज इट इज अडॉप्ट करने से पहले हम ये तो देखें कि हमारे पास जो है वो डिलीवर कर रहा है कि नहीं। हमारे पास जो वो डिलीवर कर रहा है, हम दुनिया भर की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन सबको यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमने अपने स्कूलों के अंदर कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और लेने वाले हैं जो दुनिया में कहीं नहीं हो रहे हैं। आपको अगर याद हो तो हैप्पीनेस करिकुलम हमने शुरू किया। जब ये शुरू हुआ मुझे भी नहीं पता था कि यार हैप्पीनेस करिकुलम में होगा क्या बच्चों को चुटकुला सिखाया जाएगा। When I dived into it, I realized कि ये तो वैल्यूज इनकलकेट करने का सिस्टम है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ, एकदम रियल टाइम इंसिडेंट है। हुआ यूँ कि एक माँ जो है एक स्कूल में गई अपने बच्चे को लेकर और बोली कि 8वीं, वो बच्चा 8th क्लास में पढ़ता था। माँ ने टीचर से कहा कि देखो आजकल आप लोग क्या पढ़ा रहे हो, मेरा बच्चा बदल गया है। तो टीचर ने पूछा कि घबरा गई, बोले बदल गया है तो अच्छा हो गया कि बुरा हो गया? बोले नहीं, हो तो अच्छा ही गया, लेकिन क्या कर रहे हो आप लोग? तो टीचर ने पूछा डिटेल में बताइए कि क्या हुआ। तो माँ ने बताया कि हमेशा की तरह मैंने ऐसे कल खाना खाने को दिया और जब खाना खाने को दिया तो ये बोलता है मम्मा आता हूँ मैं। वो किचन में भाग के गया और किचन में मैं भी पीछे गई। पूछा उसे क्या कर रहा है, खाना क्यों नहीं खा रहा है? तो बच्चा बोलता है कि नहीं मम्मा, आजकल टीचर ने मुझे सिखाया है कि जिसकी वजह से तुम खाना खा रहे हो उसका पेट भरा कि नहीं ये देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब सोचिए आप कि बच्चों के जहन में अगर ये बातें आ जाएं कि अपने से जो बड़े हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनके रिस्पेक्ट, उनका पेट भरा कि नहीं ये देखना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि दुनिया के देश के सारे नहीं तो कम से कम 95% ओल्ड एज होम जो है ऐसे ही बंद हो जाएंगे। इस तरह की चीजें हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और इनिशिएटिव के बारे में बता, हमने जो लिया एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम। कितने बच्चे नौकरी करेंगे? कुछ बच्चे ऐसे भी हो जो नौकरी देने के काबिल बने, उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। हमने एक और इनिशिएटिव, नोबल इनिशिएटिव लिया जो इसी टेन्योर में हमको लागू करना था। ये सब लॉकडाउन वगैरह शुरू हो गया,
जहां हम लोगों को ग्रेजुएट कराएंगे और मास्टर की डिग्री देंगे उनके फैमिली बिजनेस में। जैसे कोई आदमी है, उसकी फर्नीचर की दुकान है, उसके दादा लकड़ी के सामान बनाते थे, उसके पिताजी बनाते थे, वो बनाता है, उसके पास नॉलेज सारा है फर्नीचर बनाने का, उसके पास स्किल सारा है, तो उसको मार्केटिंग नहीं आती। हम उसको बैचलर इन फैमिली बिजनेस की डिग्री देंगे, उसको हम पार्ट टाइम ट्रेन करेंगे और वो फिर नौकरी करने की बजाय नौकरी देने वाला बन जाएगा, अपने को एक्सपैंड कर सकता है। क्या पता उसमें से कल को कोई टाटा बिरला निकल जाए, अंबानी निकल जाए। तो इस तरह के इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है, setting a benchmark that others can follow instead of we running behind other policies and other state government policies. Of course, we still strongly believe that कहीं भी कुछ अच्छा है तो उसको हमको पिक कर लेना चाहिए. Sir, I'd like to add something to that, and because of reading, well, I remembered last year, I think the Delhi government had organized a period fest Yes. in January, and that was very commendable. I was there through an NGO Yes. called Haya, and there were these 7th, 8th girls, 7th, 8th class ki girls and boys from government schools, and it was a very empowering experience. So towards gender sensitization, it contributes a lot. So Yes. congratulations on those initiatives. Thank you. Thank you. जी हर्षा बेटा. जी sir, I appreciate all the time that you've given. Is there any other questions? Are there any other questions remaining? Okay, so I appreciate the time that you have given to us, and I a hope small message to. I was able to add some value. मुझे कुछ तो टेक अवे होगा कुछ लोगों के लिए, पता नहीं कितना होगा पर ठीक है. Any message for all our viewers? We would be recording this video and putting it on our YouTube channel. So any message that you would like to give them? पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, मैं ऐसे ही बड़ा बताया आपको, बड़ा मामूली सा हूँ, फर्जी टाइप का हूँ. मैसेज बहुत बड़े बड़े लोग देते हैं, मैं क्या मैसेज दूंगा. मैं तो वैसे ही ये जहाँ है, मतलब मुझे जो लगता है कि योर लाइफ इज वर्थ लिविंग इफ यू डोंट जस्ट लिव फॉर योरसेल्फ. अपने लिए जिए तो मतलब कोई मतलब नहीं इस बात का. इफ यू आर एबल टू चेंज वन लाइफ इन योर टोटल लाइफ टाइम, फिर भी कुछ मतलब आप इम्पैक्ट कर पाए, तो सभी लोग कोशिश करें कि 1, 2, 10, 20, 50 कितनी जिंदगियों पे उनके किसी काम का असर होगा, ये इमटेरियल है. पर सिर्फ अपने लिए जीना अगर जी रहे थे अब तक तो अब छोड़ देना चाहिए. बहुत हो गया, ठीक है ना. बहुत सारे लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं. Try to make someone else's life better. Try to find your happiness in someone else's smile. That should be the purpose of life. सबका मंगल हो, सबका भला हो. Thank you, sir. At this note, wonderful message. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you.